I want to reword 1 Peter chapter 2 verse 5 in amplified version. और पहला पत्रस दूसरा अध्याय 5वां वचन, इसको मैं एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ना चाहूँगा। It is written like that, now you have become living building stones और वहाँ लिखा है कि अब तुम जीवते उस इमारत के पत्थर बन चुके हो for God's use परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए, in building his house. उसके घर के निर्माण में। Yes, we are not a living stone, it's a living building stone. और केवल जीवित पत्थर नहीं, जीवित इमारत के पत्थर, And that building stone to build his house. और वो भी उसका घर बनाने के पत्थर। And through the Bible, the building of the temple symbolizes the presence of God dwelling in that house. और पूरे बाइबल में जो मंदिर का निर्माण था वो हमेशा इस बात को दर्शाता था कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके बीच में है। And in this house means God's presence in God's people midst. और उसके घर में उस जगह में परमेश्वर की उपस्थिति मतलब क्या? परमेश्वर के लोगों के बीच उसकी उपस्थिति। Yes, in the New Testament, if you the concept of the temple expands beyond a physical construction. और हम नए नियम में देखते हैं कि मंदिर का जो अर्थ है वो एक शारीरिक वास्तु से बढ़कर है। So building of the temple of house is there in the old covenant. पुराने नियम में मंदिर का निर्माण था, एक शारीरिक मंदिर। But there is a difference when it comes. There not is a difference. There is an higher degree when you come to new covenant. पर जब बात आती है नई वाचा की तो इसमें एक अंतर है, केवल अंतर नहीं, एक उच्चतम स्तर हम देखते हैं जब हम नई वाचा में आते हैं। The old covenant features about the building, how to made with stones and how the God is dwelling there. और पुराने नियम में हमेशा जोर किस पर होता था कि वो वास्तु कैसे बनाई जा रही है, उसमें पत्थर कैसे, और तब प्रभु आकर वहां वास करेगा। When you come to the new covenant, पर जब आप नई वाचा में आते हो, brother, I've said morning, these new covenants, these stones are you and me. और सुबह भी हमने सुना, भाई ने हमसे कहा था कि नई वाचा में ये जो पत्थर है ये आप और मैं है। And these stones have been stick together by the power of the Holy Spirit. और ये पत्थर एक दूसरे को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जोड़े गए हैं। And another difference is earlier old covenant Levite family only can go inside the most holy place. एक और अंतर ये है कि पुराने नियम में केवल लेवीय गोत्र के लोग ही उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाते थे। And Jesus, after Jesus dying on the cross, we all can enter that holy place. पर यीशु मसीह जब क्रूस पर हमारे लिए मरा, उसके बाद हम सब के सब उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। In the Old Testament, it is that animal sacrifices. पुराने नियम में जानवरों का बलिदान चढ़ाया जाता था। But in new covenants, we ourselves are the sacrifices. नई वाचा में हम खुद एक बलिदान है। Because we have to die to ourselves. क्योंकि हमें अपने आप के लिए मरना आवश्यक है। I was always challenged by David's life. मैं हमेशा दाऊद के जीवन से मैंने चुनौती पाई है। Because from the beginning of his selection to the kingship, how God had brought David. क्योंकि जिस समय से प्रभु ने उसे चुन लिया, वहां से लेकर राजा होने तक कैसे परमेश्वर ने राजा उस दाऊद का अगुवाई की। Always I blessed with his life. हमेशा उसके जीवन से मैं बहुत आशीषित हुआ। Because his father had been noted about consider him as a son also. क्योंकि उसके पिता ने तो उस बेटे को किसी भी चीज के लायक नहीं समझा था। And after becoming choosing as a selection of king also, after many hardship he become a king. और राजा के तौर पर प्रभु ने उसको चुनने के बाद भी बड़े कठिनाइयों के बाद ही वो राजा बना। And when Samuel went for choosing a king from that Jesse's family, और जब शमूएल जाकर यिशै के परिवार से एक राजा चुनना चाहता था, there's a beautiful verse God is speaking to Samuel. और एक बहुत ही सुंदर चीज प्रभु शमूएल से कहता है। 1 Samuel chapter 16 verse 7. पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय 7वां वचन। But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर बनी रहती है। One thing we have to understand from this basic verse. अब इस वचन से एक मूलभूत चीज, बुनियादी चीज हमें समझने की आवश्यकता है। It's not a Samuel chosen David. ऐसा नहीं कि शमूएल ने दाऊद को चुना, God chosen David. परमेश्वर ने दाऊद को चुना। By looking at the heart of David. और दाऊद के हृदय को देखकर।
We are sitting here listening this basic truth. Not we came here, but God chosen you and me to come here. जब आज हम सब बैठकर इस बुनियादी सत्य को सुन रहे हैं तो ये नहीं कि आप और मैं यहाँ आकर बैठे हैं, बल्कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया कि हम यहाँ आकर बैठ पाए। God had brought you and me here to hear something from the Lord to build up His kingdom. परमेश्वर ने आपको और मुझे यहाँ इसलिए लाया है ताकि प्रभु की ओर से कुछ हम ऐसा सुने जिससे उसके राज्य का निर्माण हो सके। And this David have a plan to build a temple for the God. और दाऊद के मन में एक योजना थी कि वो परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाएगा। And he is declaring to the people also. और वो लोगों को बता भी रहा है। And we turn to 1 Chronicles chapter 28 verse 2 to 7. हम देखेंगे पहला इतिहास उसका 28 अध्याय 2 से लेकर 7 वचन। 1 Chronicles chapter 28 verse 2 to 7. पहला इतिहास 28 अध्याय 2 से 7। And the initial words he is saying, listen to me, my fellow Israel, my people. I had it in my heart to build a house as a place of rest for the ark of the covenant of the Lord, for the footstool of our God, and I made plans to build it. दाऊद राजा ने खड़ा होकर अपने लोगों से कहा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। Such a wonderful plan of David in his heart. कितनी अद्भुत योजना थी दाऊद की उसके हृदय में। Again, coming to the selection of David to the kingship, I sometimes doubt why God not allowed David to build this house, temple. और फिर एक बार जब हम देखते हैं कैसे प्रभु ने दाऊद को चुन लिया कि वो राजा बने, मैं कई बार सोचता हूँ क्यों परमेश्वर ने दाऊद को नहीं चुना कि वो उसके लिए एक मंदिर बनाए। David always listened to God. दाऊद हमेशा परमेश्वर की सुनता था। When we come to the verse 3, जब हम तीसरे वचन में आते हैं, God said to me, you are not to build a house for my name, because you are a warrior and have shed blood. परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। And God has given one more promise to David. और प्रभु ने दाऊद को एक और वायदा दिया। And verse 5, पांचवा वचन, He has chosen my son Solomon to sit on the throne of the kingdom of the Lord over Israel. उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वह इसराइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। Then not David is not deciding. The next verse, he said to me, God said to me. और अब दाऊद ये चुनाव नहीं करता या दाऊद ये तय नहीं करता। छठे वचन में वो क्या कहता है? उसने मुझसे कहा, मतलब परमेश्वर ने मुझसे कहा। Solomon, your son is the one who will build my house and my courts, for I have chosen him to be my son and I will be his father. तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। I will establish his kingdom forever if he is unswerving in carrying out my commandments and laws as is being done in this time. यदि वो मेरी आज्ञाओं और नियमों के मानने में आजकल के समान दृढ़ रहे तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूंगा। Brothers and sisters, again I want to remind you, we are sitting here not because of our capability or we are in the CFC. और भाई और बहनों, मैं फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम सब यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं कि हमारी कोई क्षमता है, ना ही इसलिए कि हम CFC में हैं। There is a God chosen you and me. परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है। We are nowhere else like David. हम कहीं भी दाऊद के समान नहीं हैं। God have chosen us. परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। I want to read one more verse. 1 Chronicles chapter 29 verse 1. मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ। पहला इतिहास 29 का पहला वचन। David again telling about Solomon. फिर एक बार दाऊद सुलेमान के बारे में कहता है, My son Solomon, मेरे पुत्र सुलेमान, the one whom God has chosen, सुकुमार लड़का, मतलब इंग्लिश में लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने चुना है, is young and inexperienced. वो जवान है और उसका अनुभव नहीं है। It is there in Hindi also? Okay. My son Solomon, the one God have chosen, is young and और inexperienced. हिंदी में लिखा है सुकुमार लड़का, इंग्लिश में लिखा है जो जवान है और जिसको अनुभव की कमी है। And other part is the task is great because this political structure is not for man but for the Lord God. और वो कहता है काम तो भारी है क्योंकि ये भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। This truth is not for Solomon, I believe. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सत्य सुलेमान के लिए नहीं था।
It is written for you and me. ये आपके और मेरे लिए लिखा हुआ है। If you believe that I came to CFC because I chosen CFC, or I came to Christ, not I have not chosen Christ, God chosen you and me. अगर आपके अंदर ये एक गलत भावना बैठी है कि मैं सीएफसी में आया क्योंकि मैंने इस कलीसिया को चुना या मैंने प्रभु को चुना, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि प्रभु ने हमें पहले चुना है। We have been chosen from that rock picture Abu brother have shown earlier. और जो भाई अबू ने एक चित्र पहले दिखा था, उस निराकार पत्थर की अवस्था में हम चुने गए थे। Not at all any, it's a shapeless rock. हम में कोई भी आकार नहीं था, बिल्कुल बेडोल हम थे। God have chosen me and you to become a shaped stone so that he can build you as a stone for the building of the temple of God. परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है ताकि हम एक बिल्कुल सुडौल और एक अच्छे आकार के पत्थर बने, ताकि परमेश्वर के मंदिर में हम बनाए जाए एक पत्थर के समान। We have to allow that chisel is happening in our life. और हमें अनुमति देनी होगी कि वो जो हथौड़ी का काम है हमारे अंदर प्रभु करे। I want to turn our attention to 1 Corinthians chapter 3 verse 16. मैं आपका ध्यान मोड़ना चाहता हूँ पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वां वचन। Don't you know that you yourselves are God's temple and the God's Spirit dwells in your midst? 16वां वचन, पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? We have to remember this one. हमें इस चीज को याद रखना है। In the old covenant, it's a physical structure. पुरानी वाचा में एक शारीरिक इमारत थी, But in a new covenant, me and you are the God's temple. पर नई वाचा में आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। And God wants to dwell in us. और परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है। So it is our responsibility to maintain that discipleship. और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस शिष्यत्व को बनाए रखें। It is our responsibility to work out our salvation. That is written in the Bible. और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाए, यही बाइबल में लिखा है। I want to turn your attention to Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. मैं आपके ध्यान को मोड़ना चाहता हूँ इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 से 22। Here also it is mentioned, not we have not selected a church, God have selected us. फिर एक बार यहाँ उस बात पर जोर दिया कि हमने कलीसिया को नहीं चुना बल्कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। You are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. और 19 वचन इफिसियों 2:19 कहता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। So it is written, was built on the foundation of the apostles and prophets with Jesus Christ himself as chief cornerstone. और 20 वचन कहता है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। So we always understand that we are built up on the cornerstone where Jesus Christ have laid down. और हमेशा हमें को इस बात को याद रखना है कि हम उस कोने के पत्थर पर बनाए गए हैं जहां यीशु मसीह स्वयं है। So that building cannot be like unshaped structure like this. और इसलिए वो जो इमारत है वो निराकार या बेडोल ऐसे बिना किसी आकार की नहीं हो सकती। That's why brother have said that we have to work out that five habits in our life to hate that habits from our life. और इसलिए भाई ने साझा किया कि वो जो 5 आदतें हैं हमें अपने उद्धार के काम को ऐसे पूरा करना है कि उन 5 आदतों से नफरत करना है अपने जीवन में। When it comes to that Ephesians chapter 2:21, जब हम इफिसियों 2:21 वचन पढ़ेंगे, in him the whole building is joined together जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर and rises to become a holy temple in the Lord. प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। And in him you two are being built together. 22 वचन में जिसमें तुम भी एक साथ बनाए जाते हो। For what purpose? To become a dwelling in which God lives in His Spirit. क्यों, क्या उद्देश्य है? आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए। What is our theme? हमारा विषय क्या है? What is our theme? हमारा विषय क्या है? Spiritual house. एक आत्मिक घर के समान बनाए जाना। This is a holy calling for you and me. ये एक पवित्र बुलाहट आपकी और मेरी है। You two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. और वहाँ लिखा है जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। How it happened? अब ये कैसे होता है? We turn back to 1 Corinthians chapter 6 verse
19 to 20. फिर एक बार हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20। Do you know that your bodies are temples of the Holy Christ who is in you, whom you receive from God? You are not your own. 19. क्या तुम पहला कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। Yes. Same verse we read in 1 Corinthians chapter 3:16 also. वही वचन हमने पहला कुरिन्थियों 3:16 में भी पढ़ा था, You are a temple of God. तुम परमेश्वर का मंदिर हो। But when you come to 1 Corinthians chapter 6, पर जब आप पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय में आते हो, there is one more addition in that. उसी चीज में एक और चीज जोड़ दी गई है। Verse 20 said, You were bought at a price. 20 वचन कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, Therefore, honor God with your bodies. इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Earlier, there is a building is there for the temple of God. एक समय था पुराने नियम में जहां एक इमारत होती थी जहां परमेश्वर का मंदिर था, Where is God is dwelling in that? जहां परमेश्वर उस वास्तु में उपस्थित था। Now in the new covenant, पर अब नई वाचा में we are the temple of God. हम परमेश्वर का मंदिर है So God want to dwell in us. और परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है। So how much more we have to be careful with each organs or each organs of our body. और इसलिए कितना ज्यादा सतर्क हमें अपने शरीर के हर एक अवयव के साथ, अपने शरीर के हर एक अंग के साथ होना चाहिए। Because there is a warning given in Romans chapter 8, 12 and 13. क्योंकि एक चेतावनी है जो रोमियो उसका 8वां अध्याय 12 और 13 में दी गई है। Romans chapter 8, 12 and 13. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 12 और 13। Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. इसलिए हे भाई, रोमियो 8, 12, 13, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। So we have to be very careful about this verse. और इसलिए इस वचन के बारे में हमें बड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। See, we read that we are the temple of God, हमने पढ़ा कि हम परमेश्वर का मंदिर है, where God is want to dwell in us. जहां परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है। But knowing these truths, पर इस सत्य को जानते हुए we all know the truths. हम सब इस सत्य को जानते हैं। We'll tell testimony that God have chosen me. हम सब गवाही देंगे कि प्रभु ने मुझे चुन लिया है। One day God gave me a conviction that God, you died for me. एक दिन प्रभु ने मुझे ये एहसास दिलाया कि वो मेरे लिए मरा। But many times we'll forget that God want to dwell in us. पर कई बार हम इसी बात को भूल जाते कि परमेश्वर मुझ में रहना चाहता है। Slowly our desires will go to flesh. धीरे धीरे हमारी जो इच्छाएं लालसाएं है वो शरीर की ओर जाती The है। flesh will be taken away. Satan will slowly give desires in our flesh and taken away the dwellness of God from us. और वो शरीर हम में से परमेश्वर की उपस्थिति को ले जाता है, क्योंकि शैतान हमारे शरीर में ऐसी लालसाएं देगा जिससे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच से हट जाएगी। And again I want to turn back to 1 Corinthians chapter 3. और फिर एक बार मैं पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में मुड़ना चाहता हूं। In 16 we read, don't you realize that you are a temple of house? 16वें वचन में हमने पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। But when you come to 17, पर जब तुम 17 वचन में आते हो, if anyone destroyed God's temple, God will destroy that person. यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, Because God's temple is sacred. क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है You together are the temple. और वो तुम हो। Are we taking seriously this one? क्या हम इस बात को गंभीरता से लेते हैं? One way we are say that I am following Christ. एक और तो हम कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु का अनुसरण कर रहा हूँ। Word of says as you are the temple of God. परमेश्वर का वचन हमें कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। We all are the temple of God. हम सब परमेश्वर का मंदिर है। Still we live in the desires of our flesh. पर तब भी हम अपने शरीर के लालसाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। Are we destroying that temple of God? तो क्या हम उस परमेश्वर के मंदिर का नाश कर रहे हैं क्या? When you try to destroy this temple of God, God said, I will destroy you. जब हम परमेश्वर के इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नष्ट करूंगा। If that is a truth, अगर ये सत्य है तो you know, Saul. आप शाऊल के बारे में जानते हो। Saul, what was he doing? वो शाऊल क्या कर रहा था? He was persecuting Christians. वो मसीहों का सताव कर रहा था। He is killing Christians. वो मसीहों की हत्या कर रहा था। And in Tarsus, God caught him. और
Jesus stops Saul on Tarsus और उस अवस्था में तरशीश जाते वक्त यीशु मसीह ने पौलुस को रोका on the road of Damascus. दमिश्क के मार्ग पर। What happened? क्या हुआ? Saul become और शाऊल क्या हो गया? blind. वो अंधा हो गया। But as per the verse 3:17, if anyone destroys God's temple, God will destroy that person. पहला कुरिन्थियों 3:17 क्या कहता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। Saul deserves that destruction from the God. और शाऊल इसके योग्य था कि परमेश्वर उसे नाश करे, But God never destroyed Saul. पर परमेश्वर ने कभी शाऊल को नष्ट नहीं किया। Saul, he changed to Paul. और शाऊल रूपांतरित होकर पौलुस बन गया। Can I ask one question? Are we persecuting Christians? क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या हम कोई किसी मसीह का सताव कर रहे हैं क्या? Are you persecuting any Christians? क्या आप किसी मसीह का सताव कर रहे हो क्या? Everybody said no, right? हर एक व्यक्ति ने नहीं कहा। Then I will tell you, you are the temple of God. अब मैं आपसे कहता हूँ, आप परमेश्वर का मंदिर हो। I am a temple of God. मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। So if I am dwelling in the fleshly desires and doing sins, अगर मैं शारीरिक लालसाओं में रहते हुए पाप कर रहा हूँ तो then I am persecuting myself. तब मैं अपने आप का सताव करता हूँ। I am destroying the temple of God. मैं इस परमेश्वर के मंदिर का नाश कर रहा हूँ। We read 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20 that there also said you are the temple of God. हमने पहला कुरिन्थियों 6:19-20 पढ़ा, वहां भी वही दोहराया गया है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। But उसका 18th verse we will read right now. पर उसके पहले का वचन 18 वचन अब हम पढ़ेंगे। Flee from sexual immorality. पहला कुरिन्थियों 6:18 व्यभिचार से बचे रहो। इंग्लिश में लिखा है यौन अनैतिकता से भागो। All other sins a person commits are outside the body, और जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है। but whoever sins sexually sin against their own body. परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। Now you imagine how serious we are in the body. अब आप कल्पना करके देखिए कि शरीर के मामले में हम कितनी गंभीरता से उसे लेते हैं। That's why Paul is saying that you are the temple of God. इसलिए पौलुस कह रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। You are the temple of God. तुम परमेश्वर का मंदिर हो। So if you are doing sins with your fleshly desires, अगर अपने शारीरिक लालसाओं के अनुसार तुम पाप करते जाते हो तो brothers and sisters, we are not different from Saul. भाइयों और बहनों, हम उस शाऊल से अलग नहीं है। Can we repent this time, brothers क्या and sisters? हम अब इस समय मन फिरा सकते हैं उससे? भाइयों और बहनों, We are persecuting ourselves. हम अपने आप का सताव कर रहे हैं। In this church, we are sitting here, but still we are dwelling instead of dwelling on the presence of the Lord, we are inviting the fleshly desires. इस कलीसिया में बैठते हुए परमेश्वर के उपस्थिति को न्योता देने के बजाय हम अपने शारीरिक लालसाओं को पूरा कर रहे हैं। I want to turn the incident of Saul to Paul. और शाऊल से पौलुस बनने की घटना की ओर मैं मुड़ना चाहता हूँ। I turn to Acts chapter 9. प्रेरितों के काम 9वां अध्याय। And here God have caught Saul and he was blind. और यहाँ परमेश्वर ने शाऊल को पकड़ा, वो अंधा हो गया। And Lord is telling to Ananias. और इस समय परमेश्वर हनन्याह से कह रहा है। And chapter 9 verse 15 the verse. प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 16वां वचन। But the Lord said to Ananias, go, this man is chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings to the people of Israel. माफ कीजिएगा, प्रेरितों 9:15 वचन। परंतु प्रभु ने हनन्याह से कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। Brothers and sisters who are hearing me, मेरे भाई और बहनों जो मुझे सुन रहे हैं, who are convicted that like Saul I am persecuting my own body, जिन्हें आज ये एहसास होता है कि शाऊल के ही समान मैं अपने ही देह का सताव कर रहा हूँ, God is want to tell you one thing. परमेश्वर आपसे एक चीज कहना चाहता है। You are the chosen instrument तुम परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो, to proclaim my name. मेरा नाम का प्रचार करने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए। So when I started this one, I said what David said about Solomon. और जब मैंने इस वचन को शुरू किया तो मैंने कहा दाऊद ने सुलेमान के बारे में क्या कहा। God have chosen परमेश्वर ने उसे चुना, young and inexperienced. जवान है और अनुभव की कमी है। The task is very broader, काम तो भारी है, बहुत बड़ा है, but God needs
inexperienced person. पर परमेश्वर को अनुभव की कमी रहने वाले लोगों की आवश्यकता है। God needs failed persons. परमेश्वर को असफल लोगों की आवश्यकता है। He chosen as an instrument. इन्हीं लोगों को वो अपने पात्र के तौर पर चुनता है। And there's who are taken the baptism and who are going to take baptism. I want to encourage a verse, Acts chapter 9 verse 18. और जिस किसी ने बपतिस्मा लिया है, जो कोई बपतिस्मा लेने वाला है, उनको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसका 19 वचन, 18 verse. माफ कीजिएगा 18 वचन। There it is written like this. वहां इस प्रकार से लिखा है, He got up and was baptized. 18 verse. उस 18 वचन का हिंदी में अंतिम भाग लिखा है, उसने You उठकर can read बपतिस्मा लिया। whole 18 verse, brother. 18 वचन लिखा है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। Brothers and sisters, भाई और बहनों, teenagers, young brothers, जवानों, किशोर अवस्था के लोगों, if you think that I am persecuting my own body and miserably fail in making a dwelling place for the Lord, और अगर आपको लगता है कि मैंने अपने ही शरीर का सताव किया है और बुरी तरीके से मैं असफल रहा हूं अपने अंदर परमेश्वर का निवास स्थान बनाने में, this verse have been written for you and me. तो ये वचन आपके और मेरे लिए लिखा है। Saul was persecuting the Christians. और शाऊल मसीहों का सताव कर रहा था, As per the new covenant, God have to destroy Saul. और नई वाचा के अनुसार परमेश्वर को शाऊल को नष्ट करना चाहिए था, But God have not destroyed. पर परमेश्वर ने उसे नष्ट नहीं किया। God have changed Saul to Paul. परमेश्वर ने शाऊल को बदलकर पौलुस बना दिया, He got baptized. उसका बपतिस्मा हुआ। What is written? He regained his strength. 19 वचन में क्या लिखा है? उसने बल पाया। What is the end result of because for that baptism? और उस बपतिस्मा का अंतिम परिणाम क्या हुआ? Acts chapter 9 verse 31. प्रेरितों 9 उसका 31। Then the church throughout the Judea, Galilee and Samaria इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया के में कलीसिया को enjoyed a time of peace and was strengthened, उन्हें चैन मिला और उसकी उन्नति होते गई। इंग्लिश में लिखा है उन्हें बल प्राप्त होते गया, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit. और वे प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति, या इंग्लिश में लिखा है पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन में चलते गए, It increased in numbers. और वो बढ़ती गई, संख्या में बढ़ती गई। Brothers and sisters, we have been called and chosen for making as this dwelling place or living stone. और भाई और बहनों, हमें बुलाया गया है, हम चुने गए हैं एक जीवते पत्थर के समान ऐसे निवास स्थान को बनाने के लिए। But we need a time of repentance like Saul to Paul. पर हमें मन फिराव की आवश्यकता है शाऊल को पौलुस बनने के लिए। We know that God have chosen us, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया, but we have to stay away from all the fleshly पर desires. हमें अपने शारीरिक इच्छाओं से दूर रहना होगा। We have to dwell in that Holy Spirit. हमें उस पवित्र आत्मा में रहना होगा। This is our calling. ये हमारी बुलाहट है। Our presence will be like verse 31 says, our church will have peace. 31 वचन में जैसे लिखा है हमारे कलीसिया में शांति होगी। Wherever we go, all the family gets strengthened. जहाँ कहीं हम जाते हैं सारे परिवारों को उन्नति मिलेगी, वे बलवंत वे होंगे। The church will encouraged by the Holy Spirit. और वो कलीसिया पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन पाएगी। Then the beauty of that, then the numbers will increase. और तब वो कलीसिया बढ़ती गई। This is our calling. ये हमारी बुलाहट है। This is our spiritual calling. ये हमारी आत्मिक बुलाहट है। Brothers and sisters, teenagers who are going to take baptism, भाई और बहनों जिन्होंने और जो किशोर अवस्था के लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं, take the life of Saul as a challenging life for you. शाऊल के जीवन को अपने लिए एक चुनौती के जीवन के तौर पर देखिए। Not considering your ability or failures. ना ही अपने क्षमता को देखें, ना ही अपने असफलताओं को। God have chosen you परमेश्वर ने आपको चुन लिया है to making a blessing, आपको एक आशीष बनाने के लिए, to chosen an instrument to proclaim His name. एक चुना हुआ पात्र उसके नाम की घोषणा के लिए। Let us grow together. आइए हम एक साथ उन्नति करें, God's name glorified. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले।